इतना साइज ठीक है आपको? इज इट क्लियर? नजर आ रहा है? ठीक. Okay, so good morning and welcome to session 11 of Environmental Chemistry and Fundamentals of Environmental Engineering. I'm back with 4 more lectures, and it's all about the chemistry of natural waters. Before this lecture, we talked about air pollution, and there were some chemical aspects of that as well as the engineering concepts of it. Dr. Ali Rauf ने he talked about the engineering, जो कुछ models थे उनकी बात की है. So we are almost done with the air. If we could spare some more time, we will maybe talk about some additional topics like the acid rain and the climate change, but we'll see. So we are moving to the second module of this course, and now we are into water. Okay, so this is how we are going to talk about the chemistry of the natural waters. So there are very fundamental things. You know that almost 97% of water that is present on this planet is the seawater, right? And that's not suitable for human consumption or for agriculture or for the industry. So it's almost useless for us, right? And only 3% of that water is usable. और उसमें से भी जो 3/4 of that है, that is trapped in the form of ice. Okay, so fresh water में 3/4. So this is the surface water that is available in streams or rivers. And then we have some what we call the groundwater, जो कि there's a water table down in the Earth's crust at few hundred, अगर आप चले जाएं meters, तो you can reach what we call the water table, जो कि underground water होता है इसका. आप में से कोई इसको फ्रीज कर सकता है? म्यूट, वेयर इज म्यूट? आप अगर काइंडली देखें, इसको म्यूट कर दें. Okay, so this is the basically situation of the water. So sea contains almost 97% of water. That is, I thought, okay, not suitable for humans, agriculture or industry, whatever purposes. Then there are some processes that are basically taking place. There's the evaporation from sea, and then air currents take this water to land, right? Then there is
what we call the precipitation or the rain of this back to the sea. Evaporation also takes place here at the surface water, of the surface water. And of course, there is also the rain coming out of it. So there are many exchanges of water between, these different forms like the sea and the atmosphere, land and an atmosphere, and so on. So that was a basic thing about it. Up to 2000, there were only 6% of population was under the stress of water. I mean, they were not having enough access to the drinking water. But that has increased to almost 38%, or it will increase to 38% by 2050. Okay? So these are some of the things which make us to, conserve water. क्या किया जा सकता है और एक तो ये है कि हमें कंजर्वेशन की बात करनी पड़ेगी क्योंकि you remember on the very first day we calculated our क्या कहते थे उसे water footprint. Yes. Do you still remember आप क्या क्या numbers आ रहे थे आपके पास? I shared a link with you. क्लास में हमने किया था, but that wasn't very detailed. So एक fresh था है जिसमें आप कर सकते हैं कि what is your water footprint. So numbers are really, really high. I think US के अंदर a normal जो citizen है US का, it utilizes almost 390 liters of water per day. 390 liters. So if we, just look into our daily activities और उसमें कैसे हम water use कर रहे हैं and where it is ending up, उसकी fate क्या है, you'll see that we are wasting lots of this fresh water which is already scarcely available. यानी अगर मैं आपको ये बताऊँ ना, दुनिया का सारा पानी अगर हम कहें कि 2 लीटर है, 2 लीटर का एक बॉटल हो, तो फ्रेश वाटर सिर्फ 4 ड्रॉप्स बनते हैं उसके. 4 drops in 2 liters. So this is really, so एक तो ये है कि वाटर कंजर्वेशन का हमें थोड़ा सा एक आता है कि हमें करना चाहिए. दूसरा हम क्या ऑप्शन कर सकते हैं? Exactly. We need to think of the ways by which we can utilize the seawater. Do you remember, do you know any method by which we can utilize seawater? Yeah, let's say, how can we make it drinkable? Yeah. How? Reverse osmosis. Yeah, there's a technique which is called the reverse osmosis. What we do, we have membranes. These membranes are basically a kind of filters. They are capable of even filtering out the soluble ions. ठीक है? Salt water में basically ये है कि sea water में there is a very high concentration of salts. ठीक है? Cations भी हैं, anions भी हैं. तो because of that it is not suitable. तो अगर आप उसमें से ions को remove कर दें by any method, जैसा कि RO reverse osmosis का आपने नाम लिया, जिसे हम So reverse osmosis में basically ये किया जाता है कि you filter out, okay, all the ions present in the water और उसको आप use कर सकते हैं. तो अगर ऐसा है तो why still, मतलब आपने देखा हम sea water use कर रहे हैं, if there is the techniques available, so why we are not efficiently using the sea water so far? क्योंकि RO का तो अभी हमने देखा ना कि if we are taking the water from the वाटर टेबल यानी ग्राउंड वाटर को अगर हम ले रहे हैं तो वी आर यूजिंग इट टू प्योरीफाई और फिर बॉटल्ड वाटर की फॉर्म में उसे बेच रहे हैं. ठीक है, क्या इशू है? इट्स एनर्जी इंटेंसिव. ठीक है, इट्स वेरी एनर्जी इंटेंसिव. कोई भी ऐसी टेक्निक जिसमें लेट्स से कि यू कैन डू द सेम प्रोसेस बाय यूजिंग जस्ट द सनलाइट विल बी हाईली एफिशिएंट और वो हाईली अप्लाइड हो सकता है, फिर हम उसको यूज करके सी वाटर को एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं. सो दैट वाज वेरी ब्रीफ intro
about the water, issues क्या हैं, and how can we solve them, availability water की क्या है, right? Okay, next we'll talk about, चूंकि we are going to talk about many things, जैसा कि there are many dissolved things in water, like gases हो सकते हैं, volatile organic compounds हो सकते हैं. So how basically we express them, how we talk about their concentration, ये चीज़ हमने देखनी है. तो when we talk about the volatile organic compounds and gases in water, we use these units which are called parts per million or billion. And we know that they are abbreviated as ppm or ppb. So we are going to use the same units here. और कुछ conversions भी मैं आपको बताता हूँ कि remember we often use this unit milligram per liter or microgram per liter. So they are basically ppm. ये ppm है और ये ppb होता है, ठीक है? And even they are also equal to what we called milligram per gram. And this equals microgram per gram. So all these units, concentration units, are basically equivalent to each other. And we are going to use the same to express water. Okay? So let's talk about the solubility of some volatile organic compounds. VOCs in water. Okay? For example, let's talk about benzene. You know, benzene is a organic compound. It's an aromatic compound, बड़ा famous है, आपको पता होगा. This is how we draw it. ठीक है? अमूमन हम एक सर्कल सा बना लेते हैं उसका, and it is written as C6H6. It's a hydrocarbon. और hydrocarbons are usually not soluble in water. That is the perception, right? That they are not soluble in water. But let me tell you that they do have some solubility in water. For example, अगर आप benzene को देखें तो it has a solubility of 1000 grams per liter. ठीक है? So this is the solubility of benzene. How much it will be in ppm? Sorry, not 1000 gram, 1000 milligram. Okay, which equals basically 1000 ppm. So that is the solubility. So solubility is basically how much amount of a solute basically dissolves in a given amount of the solvent. ठीक है? तो हम उनको ratio में देख लेते हैं. So this means that in 1 liter of water can dissolve 1000 milligrams of benzene. ठीक है? So this is इसमें condition ये होती है कि after the dissolution solution gets saturated, means it cannot dissolve any further amount of solute in it. तो ये solubility में condition है कि that is the maximum amount at a given temperature that can be dissolved in a given volume, right? जैसा कि हमने देखा कि I think this is at 25 degrees C, solubility increases with temperature. So at 25 degrees C, you cannot dissolve more than 1000 milligrams of benzene in water, in 1 liter of water, right? So yeah, this is how we express them. अच्छा, अब हो क्या रहा है? Basically, if this is the water surface, let's say कि this is water, और ये water की surface है, then this is air, of course, right? This is air, or this is water. So what happens? Benzene is a volatile compound, right? Because of its low boiling point, it evaporates
और जब इवेपोरेट करता है तो ऑफ कोर्स देयर विल बी द वेपर्स ऑफ इट हियर. These vapors will exert a pressure on the surface of water, जिसे हम क्या कहते हैं, partial pressure कहेंगे, because of course it's not the solely benzene vapors, there will be air as well. So हम इसे कहेंगे कि this is the partial pressure of benzene. Okay, so there is a kind of equilibrium is established. The rate at which this benzene is evaporating, and then of course if it is there, it can dissolve back in water, right? Dissolve कर सकता है वापस. So एक तरह का हम कह सकते हैं कि this is an equilibrium kind of thing, right? So in one way it is evaporation, and the other way is the dissolution. Right? And this is the equilibrium. So at equilibrium, we can use Henry's law to find, many important things. Like, for example, अगर हम इसे यूं करके लिख लें, so we can write कि benzene in gaseous form is now at equilibrium with benzene that is dissolved, और हम उसे aqueous करें, the one that is already there in water. ठीक है? So Henry's law ये कहता है कि basically the ratio of these two things is always constant. Okay? So if we talk about the concentration of benzene, that is AQ लिखते हैं इसे हम, ठीक है? That is constant. ये Henry's law कहता है, ठीक है? And we remember कि for gases, instead of using these square brackets are what? Concentrations. In what units always? Moles per liter. Square brackets जो हैं, they always tell us the concentration, and in moles per liter. For gases, moles per unit is not the right concentration to use. We use their partial pressures. Okay, that's the convention. So here what we can do, we can replace this benzene gas with the partial pressure of benzene. Right? हम इसके बजाय ये टर्म यूज कर सकते हैं. So in that case, हम इसे यूं लिख सकते हैं कि this is C6H6 in aqueous form and the partial pressure of C6H6. Okay? And these equilibrium constants, we can, experimentally find them. हम इनको डिटरमिन कर सकते हैं. एंड बेंजीन के लिए हमारे पास वैल्यू मौजूद है. फॉर एग्जाम्पल, रिमेंबर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंजेस विद टेम्परेचर. ठीक है, तो हमेशा एक टेम्परेचर पे फिक्स वैल्यू होती है. सो फॉर बेंजीन दिस वैल्यू KH हेनरीज कांस्टेंट जो है, ये वैल्यू है इसकी 0.15 और यूनिट है मोल पर लीटर पर एटमॉस्फेयर. रिमेंबर K का जो यूनिट है चेंज करता है फ्रॉम वन रिएक्शन टू द अदर रिएक्शन. हाउ कैन वी फाइंड इट्स यूनिट्स? इधर ही आप यूनिट्स लगा दें. ठीक है, कंसंट्रेशन का यूनिट, पार्शियल प्रेशर का यूनिट, दैट विल बी द यूनिट ऑफ द K. अच्छा, अगर ऐसा है तो यू नो कि यू कैन फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन from this equation, right? Very easily. So partial pressure of benzene basically will be equal to, किसके equal होगा? If we use this expression, so it will be equal to basically the solubility C6H6 AQ और times होगा या नहीं? Divided by होगा, exactly. And divided by KH,
और जो कि आपके पास वैल्यू है 0.15, ठीक है। तो you can find the partial pressure. अच्छा, we can also use the same expression to find many interesting things. For example, ऑक्सीजन की solubility क्या है वाटर के अंदर? That's a very important question. Why? It is required for the marine animals. Sorry? It is required for the animals living. Exactly. There are many living organisms in water. Fish है सबसे पहले आपके सामने, तो उनकी लाइफ के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि देयर मस्ट ऑलवेज बी सम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन. दे यूज दैट डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, और उसको फिर हम कह सकते हैं. सो लेट्स फाइंड कि हाउ कैन वी फाइंड द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन. सो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का मतलब ये हुआ कि O2 इन गैसियस फॉर्म and O2 in aqueous form. So again, it is the same example as I quoted for the case of benzene, कि भाई this is always, oxygen is present in air, it keeps dissolving in water और फिर वापस bubble out होती रहती है. So it volatilizes from water, dissolves back. So it's a kind of equilibrium जो कि establish हो जाता है. So again हम इसके लिए Henry's law यूज कर सकते हैं. So KH will be equal to concentration of O2 in aqueous form divided by partial pressure of oxygen. Right? So if we know any of these values, we can find, we are interested in knowing this concentration of oxygen in aqueous form, which is basically the dissolved oxygen. So for that we need the KH value. KH value for oxygen, ये आपको tables मिल जाते हैं और all available online. So it is at 25 degrees C. I told you that it is dependent upon temperature. This value is 1.3 into 10 raised power minus 3. Again, यूनिट डिपेंड करेगा कि आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन क्या है. मोल्स पर लीटर और एटमॉस्फेयर ही है, सेम एज दैट ऑफ बेंजीन. ये हमें पता चल गया. वी नीड टू नो कि व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. सो इट चेंजेस विद द हाइट, राइट. तो सी लेवल पे देख लेते हैं कि सी लेवल पे PO2 की क्या वैल्यू होती है. सो एट सी लेवल this PO2 is 0.21 atmosphere. So we need to solve this equation for O2. So O2 की हमारे पास aqueous जो concentration आ रही है, that will be equal to KH यानी 1.3 into 10 raised power minus 3 times 0.21. It's always good to write the units हमेशा, ताकि आपको पता चले कि product किस form में आएगा. And that equals 8.7 milligram per liter, or 8.7 ppm. अब हमें ये पता चल गया कि न्यूट्रल वाटर में at sea level this will be the dissolved oxygen in it. Remember, fish को जिंदा रहने के लिए at least 5 ppm dissolved oxygen चाहिए, right? इससे ड्रॉप होगी तो फिर इसका मतलब है कि फिश या एक्वेटिक लाइफ विल नो मोर बी देयर. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस? व्हाट इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर? ये हमने 25 पे किया है, 0 पे क्या होगी? फाइंड कर सकते हैं आप. एग्जैक्टली, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी और यू विल सॉल्व द सेम इक्वेशन. 0 डिग्री सी पे इसकी जो वैल्यू आती है, थोड़ा सा रख लेते हैं. एट 0 डिग्री सी दिस वैल्यू इज 14.7 ppm, और एट 35
आप देखेंगे कि ये वैल्यू कम होके 7 ppm रह जाती है। So solubility increases with decreases with temperature, right? For gases. ठीक है, गैसेस के केस में उनकी सॉल्युबिलिटी, अमूमन हमने देखा था कि सॉलिड्स के केस में सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, लेकिन गैसेस में इट डिक्रीजेस विद टेम्परेचर। अच्छा, तो ये हमें पता चल गया कि दिस इज मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज देयर एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अच्छा, दिस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ऐसे इनएक्टिव फॉर्म में नहीं रहती, इट फर्दर पार्टिसिपेट्स इन मेनी केमिकल रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल क्या करती है ये, रिमेंबर कि इफ देर इज इनफ oxygen, dissolved oxygen in water, water will be reducing in nature. No, sorry, it will be oxidizing in nature. सारी बात oxygen dissolve है ना, तो what will it will be oxidizing in nature. So how हमने ये देखा कि this dissolved oxygen, हम इसे O2 लिख लेते हैं सिंपल, that can cause the, हम इसे लिख लेते हैं कि dissolved oxygen causes oxidation. फॉर एग्जाम्पल किसकी करेगी, देयर इज समटाइम्स बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर होता है वाटर के अंदर, मतलब स्वीट वाटर के अंदर तो ज़्यादा है ना, तो दैट विल बी oxidized always in the water because of the dissolved oxygen. उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, यानी अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक वेस्ट काफ़ी सारा हम जनरेट करते हैं, सूएज वाटर एक एग्जांपल है, ये जो हमारा नाला बहता है, इट्स प्लेंटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज देयर। हम देखेंगे कि आज के क्या क्या हो सकती हैं इसके अंदर चीज़ें। तो अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन यूज होती है इन सम अदर रिएक्शन लाइक फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इट विल नो मोर बी अवेलेबल फॉर द एक्वेटिक लाइफ। तो गंद शंद फेंकने से पानी में एक्वेटिक लाइफ को आप खत्म कर रहे हैं, ठीक है, जो भी उसमें पानी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी, स्पेशली जो फिश है। सो व्हेन इट कॉजेज, मसलन हम इसमें एक लिख लेते हैं, फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वी यूज दिस जनरल फॉर्मूला CH2O. So this is for basically the organic compounds, especially the polymeric carbohydrates. Polymeric carbs, ठीक है, कोई पॉलीमरिक कार्ब्स क्या है, स्टार्च हो गया जो कि हम पोटैटो, राइस, इसके अंदर चीज़ें हैं। इसके अलावा क्या है, एग्जैक्टली सेलुलोज है, राइट, सेलुलोज जो कि वी कांट डाइजेस्ट, लेकिन वी नो के फाइबर जितना भी हमारी डाइट के अंदर है दैट इज सेलुलोज, ठीक है। इसके अलावा और भी है, लेकिन मसलन लीवर के अंदर कौन सी स्टोर करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, राइट, ओके। या मैं लिख लेता हूं यहां पे। सो दिस इज बेसिकली दैट विल रिएक्ट विद द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, और फेट क्या होगी इसकी, इट विल बी CO2 एंड वाटर। सो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इसका, ऑक्सीजन का अपने साथ क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन जब भी होते हैं ना, व्हेन देयर इज एन सम ऑक्सीडेशन टाइप ऑफ रिएक्शन, पैरेलल में रिडक्शन भी होगी, अदरवाइज ये सिंगल रिएक्शन हो नहीं सकता। सो ऑक्सीजन की अपनी फिर रिडक्शन होती है। ऑक्सीजन की रिडक्शन दो फॉर्म्स में हो सकती है, इट कैन रिड्यूस टू वाटर और इट कैन रिड्यूस टू OH आयंस। अच्छा, अब हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम अपनी फ्रेशमैन केमिस्ट्री के जो कंसेप्ट्स हैं ना, ऑक्सीडेशन नंबर और हाउ वी बैलेंस रिडॉक्स इक्वेशंस, ये दे आर वेरी सिंपल थिंग्स
इवन फ्रेशमैन केमिस्ट्री के बजाय ए लेवल या जो एफएससी की केमिस्ट्री है उसमें भी ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं, दैट्स नथिंग न्यू, तो हम उनको यूज करेंगे। अच्छा, अब बुक में आपको इक्वेशंस मिलेंगी, इतने प्रोटॉन और इतने इलेक्ट्रॉन, अब आप रट तो नहीं सकते ना उनको, राइट? तो क्या तरीका है, कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए आपको ये पता होनी चाहिए कि ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और रिड्यूस्ड फॉर्म्स क्या है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। बाकी यू कैन मेक द इक्वेशन ऑन योर ओन। फॉर एग्जांपल, इस इक्वेशन को कैसे हम लिख सकते हैं? अब आप देखिए यहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में हमेशा 0 होता है। यहां पे ये -2 है, हाइड्रोजन +1 है, ठीक है? ये आज आप कंसेप्ट रिवाइज कर लेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे हम फाइंड करते हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग टू ऑक्सीजन? इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? डिक्रीज कर रहा है ना, 0 से -2 में जा रहा है। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज द रिडक्शन प्रोसेस, राइट? और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब ये यहां पे भी 0 है, OH में भी इट इज -2। सो इन बोथ केसेस ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीजिंग, विच इज रिडक्शन प्रोसेस। अच्छा, अब ऐसी इक्वेशंस को बैलेंस करना बड़ा आसान है। बैलेंस करने का पहला तरीका ये होता है कि आप जो भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा एटम्स हैं पहले उनको बैलेंस करते हैं। हमारे पास है ही नहीं कोई। नेक्स्ट थिंग, बैलेंस प्रोटॉन्स। हाउ वी डू दैट? बैलेंस ऑक्सीजन, सॉरी, सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करें। यू नीड टू ऐड वाटर टू बैलेंस ऑक्सीजन। वी हैव ओके, सो हम यहां पे ऐसा करते हैं कि we can add one more water molecule here. So now we have 2 oxygen atoms, 2 oxygen atoms. They are balanced. We need to balance protons now, second number pe. How many hydrogen atoms are there on the right hand side? 4. How many on the left hand side? None. So to balance hydrogens, what we do? कुछ याद आता है? H पॉजिटिव, एग्जैक्टली। वैसे डिपेंड करता है कि आप एसिडिक कंडीशंस में हैं या बेसिक कंडीशंस में हैं, या लेकिन इट इज ऑलवेज वेरी सेफ टू यूज प्रोटॉन्स इन व्हाट एवर कंडीशंस यू आर। ठीक है, बड़े आसान सी, आंखें बंद करके प्रोटॉन्स ऐड करें। हाउ मेनी? और प्रोटॉन्स को H+ लिखते हैं हम, राइट? हो गया। अगला काम, हमारे हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, चार्ज बैलेंस करें। चार्ज बैलेंस करने के लिए आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं ऑन ईदर साइड, लेकिन हमें पता है कि रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स आर द रिएक्टेंट और ऑक्सीडेशन में दे आर द प्रोडक्ट्स, राइट? मतलब रिएक्टेंट के तौर पे होते हैं ना, यानी लेफ्ट साइड पे होते हैं। ऑक्सीडेशन में दे आर द प्रोडक्ट, यानी राइट साइड पे होते हैं। सो वी हैव 4 पॉजिटिव चार्जेस हियर, 2 नेगेटिव, इधर कोई भी चार्ज नहीं है। Remember that these are the oxidation numbers. Oxidation numbers are not the real charges. So यहाँ पे 0 चार्ज है नेट, यहाँ पे 4 पॉजिटिव चार्जेस हैं। कैसे हम कर सकते हैं? अब इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। तो हमें पता है कि इट्स अ रिडक्शन प्रोसेस। तो व्हाट इफ वी ऐड 4 इलेक्ट्रॉन्स हियर? नाउ 4 + 4 - 0, 0, 0। और इसी इक्वेशन को, अगली को मैं जरा मिटा देता हूं थोड़ी देर के। इसी को जब आप लिखते हैं, सो हमने कहा कि ऑक्सीजन प्लस 4 प्रोटॉन्स प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स मेक्स 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब आप देखिए, आपको रटा लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपने खुद इक्वेशन बना दी है। And what this equation is basically, this is called reduction half equation. अगर ये रिडक्शन हाफ इक्वेशन है तो ये वाला जो था, that is the oxidation half reaction. Right? So can you make the same equation for the OH? हमने ये कहा ना इधर कि ऑक्सीजन
is also reduced to OH ions. इस पे वर्कअप करें ना जरा. This is the reduction half equation, but this is not balanced or complete. Exactly, एक काम थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आएगा, लेकिन you do the same steps. Balance atoms other than oxygen and hydrogen by simple using the coefficients, integers. सेकेंड पे हाइड्रोजन को बैलेंस करें प्रोटॉन ऐड करके, और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को बैलेंस करके करें वाटर ऐड करके, हाइड्रोजन को ऐड बैलेंस करें प्रोटॉन ऐड करके, और एंड में अगर आपके पास प्रोटॉन बचे हुए हैं तो उनको बैलेंस करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए आप OH ऐड कर दें. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास इक्वेशन की एक साइड पे 3 प्रोटॉन पड़े हुए हैं. आप बेसिक कंडीशन में प्रोटॉन तो नहीं हो सकते ना, आपने उतने ही हाइड्रोक्सिल आयंस ऐड कर देने हैं ऑन ईदर साइड, विच इज बेसिकली द एक्शन ऑफ डूइंग नथिंग. कम ऑन, हरी अप. हमने कुछ भी नहीं रखा, सिर्फ इतना देखा है कि हमारा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म क्या है और रिड्यूस्ड फॉर्म क्या है. तो ऑक्सीजन का वाटर में कन्वर्ट होना इज रिडक्शन, ऑक्सीजन का हाइड्रोक्सिल आयन में जाना भी रिडक्शन प्रोसेस है, लेकिन उसके लिए इक्वेशन हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं. डू यू हैव समथिंग टू राइट? यू नेम आपका, ये जो कैमरे के साथ बैठे हुए हैं आप, या नाम क्या है? उमैर, उबैद. तो कुछ है लिखने के लिए? सॉरी यार, आई थॉट कि आप जो है ना वो इधर बैठे हुए, मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं किया. अच्छा सही है, ओके. सो यू डन? आपने कर लिया? जबरदस्त. आपका भी हो गया? ग्रेट. सो कैन यू टेल मी कि मैंने क्या ऐड करना है इसमें, किस साइड पे? टू एच. ओके. एंड how many electrons on this side? On the left side, On left side. add another hydroxyl ion on the right side. Okay, so this is 2 OH, right? And how many electrons? 4. सारे एग्री कर रहे हैं इससे? O2, no water. So I added one water instead of an hydroxyl. So this is one hydroxyl and one water. Okay. So let's do quickly here. Again, हमने कहा कि there are no atoms other than oxygen and hydrogen. So let's balance oxygen. How we do that? There's 1, 2, and 1. So need to add water. Okay. Now we have 3 hydrogens, so we need to add 3 protons. Am I right? Okay. अब जब आपके पास ये आ गया तो आपने ये करना है नेक्स्ट पे कि you need to balance charge. We have negative charge here और +3 charge है. तो कैसे बैलेंस कर सकते हैं? 4. ओके, सो 4 इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे कर दिए. लेकिन एंड में यहां पे चूंकि OH आयंस जब भी होते हैं तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन विल बी बेसिक. सो वी नीड टू डू वन एडिशनल स्टेप. वी नीड टू ऐड हाइड्रोक्सिल आयंस. हाउ मेनी? प्रोटॉन्स गाइड करेंगे, जितने प्रोटॉन्स है उतने गाइड करें.
सो वी नीड टू ऐड 3 प्रोटॉन्स, मैं इसी में कर लेता हूँ. सो हमें यहाँ पे 3 OH इस साइड पे ऐड करने पड़ेंगे और 3 OH इधर ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि इट्स ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. सो ये हमारे पास 3 वाटर हो जाएंगे, लेकिन 3 वाटर अगर यहां पे है, एक वाटर इधर भी है, तो नेट क्या हो जाएंगे? 2 वाटर, राइट. 3 माइनस हो जाएगा 1 प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन. यहां पे क्या हो गया? ये वाटर हमने इधर से कैंसिल कर लिया. सो आप देख सकते हैं कि दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट. यहां से देखें ना, H और OH जब भी आपस में मिलते हैं वाटर बनता है. सो दिस इज बेसिकली 3H2O. 3H2O और H2O इक्वेशन के अपोजिट साइड पे बेसिकली अगर चीजें हैं तो दे आर कैंसलिंग ईच अदर, ठीक है, इसलिए. सो दिस इज द वेरी अच्छा. ये रिएक्शन जो हमारे नजर आ रहे हैं ना दोनों, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बिकॉज वाटर इलेक्ट्रोलिसिस, जिससे हम हाइड्रोजन विच इज ए फ्यूचर फ्यूल ऐसे ही बनाते हैं. आगा वकार याद है आपको? कितने लोगों को याद है? द गाय हु सेड के मैंने पानी से जो है ना वो गाड़ी चला रहा हूँ, और ये टीवी चैनल वाले आ रहे हैं, हामिद मीर साहब और दूसरे, कि नहीं जी चलती है, मैंने खुद देखी है. तो ही वॉज डूइंग द सेम ट्रिक कि गाड़ी की बैटरी, इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि ये एक रिएक्शन है वाटर का, ऑक्सीजन, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन लेके दे गो टू द हाइड्रोजन, ठीक है. तो एक यानी वाटर इलेक्ट्रोलिसिस का जो हाफ रिएक्शन है वो ये है, इसे हम ऑक्सीजन रिडक्शन कह रहे हैं, ठीक है. तो इस तरह से दे हैव आल्सो इंपॉर्टेंस इन द इलेक्ट्रोलिसिस या वाटर इलेक्ट्रोलिसिस पे जो लोग काम करते हैं, ठीक है. क्योंकि वाटर इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन तो नहीं बनाई जाती कमर्शियली. कैसे बनाते हैं हम? वी डू दी रिफॉर्मिंग, स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ मैथेन गैस, इंडस्ट्रियली ऐसे ही बनाते हैं. लेकिन रिन्यूएबल अगर आपने करना है तो आप उसको इलेक्ट्रोलिसिस से कर सकते हैं, वाटर से, ठीक है. और अगर फ्यूचर फ्यूल है तो दैट्स ए वेरी वायबल प्रोसेस. तो इस तरह से हमने इसको देख लिया है कि ये करते हैं. अच्छा, अब हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं ऑन दी ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. बेसिकली जो इवन ड्रिंकिंग वाटर है या जो आपके इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स आते हैं, वी ऑलवेज मेजर दिस प्रॉपर्टी. हर पानी के अंदर, जैसा कि हमने देखा ना, वाटर का जब एनालिसिस किया जाता है, देयर आर मेनी पैरामीटर्स विच वी स्टडी. व्हाट इज द पीएच, व्हाट इज द टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, कंडक्टिविटी कितनी है, what is the concentration of different metals, calcium, magnesium, sodium. पानी की बॉटल है किसी के पास इस वक्त? नेस्ले और बॉटल्ड वाटर है किसी के पास? यू कैन सी देयर आर मेनी मेटल्स जो कि मिनरल्स जिसे हम कहते हैं इसके ऊपर हैं. सो आप रीड कर सकती हैं क्या क्या है इसके ऊपर? Sodium, magnesium, potassium, chloride, sulfate. So there are many anions and cations, they are present in. So we always measure them जब हमने क्वालिटी को पढ़ना होता है. So one of the quality parameter for water is biological oxygen demand. ठीक है, ये हमेशा हम इसे करते हैं. So biological oxygen demand क्या चीज है? We said if there are bacteria or some organic matter in water that is going to consume oxygen, dissolved oxygen, right? Why? Because it is going to oxidize. जैसा कि अभी हमने यहां पे लिखा है. So what is the end? इसका रिजल्ट क्या होगा? The levels of dissolved oxygen will continue declining. तो हम ये देखना चाहते हैं कि what is the amount of dissolved oxygen in water. तो उसके लिए हम ये करते हैं कि what we basically do कि let's say if we have a water
तो हम इसको इनक्यूबेशन करते हैं, इनक्यूबेट करते हैं। इनक्यूबेट का मतलब ये होता है कि एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे हम अपने मटेरियल को रख देते हैं। ये अमूमन 20 डिग्री सी पे होता है, 20 से 25 हो सकता है, लेकिन ज्यादातर 20 डिग्री सी यूज किया जाता है। सो व्हाट वी डू, वी टेक सम वाटर, लेट्स से 300 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर ले लिए, ये बाहर नाले से ले ली। हम इसकी बीओडी अगर फाइंड करना चाहते हैं कि लम्स का जो नाला है कितनी बीओडी है, हम 300 मिलीलीटर्स कलेक्ट करके लाएंगे, 20 डिग्री सी पे उसको हम रख देंगे, लेकिन पीएच उसकी हमने न्यूट्रल रखनी है। और वो आपको पता है कि हम बफर्स ऐड करते हैं, दीज आर द सॉल्यूशंस व्हिच रेजिस्ट एनी चेंज इन पीएच। सो हम पीएच 7 का जो बफर है, जो कि फॉस्फेट बफर कहलाता है, वो हम इसमें रखेंगे। सो पीएच इज 7। और उसके बाद अमूमन इसके अंदर देयर आर इनफ बैक्टीरिया अवेलेबल इन वाटर, जो कि आपका सुएज वाटर है या जिसको हमने ट्रीट नहीं किया हुआ, ठीक है। तो उसमें बायोलॉजिकल बैक्टीरिया के एक्शन की वजह से बहुत सारे ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस होते रहेंगे। एंड व्हाट वी डू, वी इनक्यूबेट दिस फॉर 5 days। लेकिन हमने क्या किया था, वी फर्स्ट कैलकुलेटेड द कंसंट्रेशन ऑफ dissolved oxygen before this process, and we do the concentration of dissolved oxygen after। तो इससे हमें यह पता चल जाता है कि what is the amount of dissolved oxygen that was consumed by bacteria or the organic matter। So BOD is basically that amount of dissolved oxygen that is consumed by the organic matter या bacteria, दोनों तरह के काम कर सकते हैं। अच्छा, जो अनपॉल्यूटेड वाटर है ना, सरफेस वाटर, यूएस के अंदर इसकी वैल्यू होती है 0.7 ppm BOD। अच्छा, इसे BOD 5 भी कहा जाता है इसे। रिमेंबर कि अमूमन ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस 5 दिनों में कंप्लीट नहीं होते। एक गैस के मुताबिक, एक एजुकेटेड गैस के मुताबिक, एटलीस्ट वी नीड 20 days टू कंप्लीट बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन इन वाटर। अब 20 दिन इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर अस टू डू द एनालिसिस, सो व्हाट वी हैव कंप्रोमाइज्ड ऑन 5 days। सो स्टैंडर्ड मेथड यही है कि जब हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड फाइंड करते हैं तो वी डू इट, वी इनक्यूबेट द वाटर फॉर 5 days ओनली। सो दिस इज कॉल्ड BOD 5। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। जब भी आपने अगर आप इंडस्ट्री हैं तो आपके एफ्लुएंट्स में वेस्ट वाटर आ रहा है, तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी कहेगी आपको कि व्हाट इज द BOD ऑफ योर एफ्लुएंट वाटर, राइट। अच्छा, इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए? हाँ, इसके लिए हमें पूछना पड़ेगा कि व्हाट इज इट बेसिकली। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया, तो दैट अमाउंट शुड ऑलवेज बी लेस। तो हमने देखा कि सरफेस वाटर यूएसए में 0.7 ppm उसकी या मिलीग्राम पर लीटर BOD है, यानी इतनी ऑक्सीजन वो कंज्यूम करते हैं बैक्टीरिया। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट द सुइज वाटर की BOD सेवरल 100 ppm तक होती है, 100 ppm, 200 ppm, 300 ppm। तो जितना ज्यादा है इतना ही बुरा है हमारे लिए, ये कम होनी चाहिए। अच्छा, एक और पैरामीटर है जो कि इक्वली यूजफुल है बट इट इज वेरी क्विक, उसे हम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। और इसे COD लिखा जाता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इट्स अ ट्रिक कि
We know that there is some organic matter in water, right? Or it has a tendency to oxidize because this is how it is going to decompose. CO2 और water में convert हो जाएगा, right? तो हम क्या करते हैं कि बजाय 5 दिन वेट करने के, we treat it with a strong oxidizing agent और फिर कैलकुलेट कर लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितना यूज हुआ था और उससे हम पता चला सकते हैं कि इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर कितना था बेसिकली, राइट? तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? डू यू नो एनी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? KMnO4, एग्जैक्टली, पिंकी, पोटासियम पर मैंगनेट। इट्स ए ऐसा केमिकल है कि आप बाजार से खरीद सकते हैं, ठीक है? KMnO4। सो हम इसे कहते हैं पोटासियम पर मैंगनेट। सो बेसिकली इसके अंदर मैंगनेट आयन्स होते हैं जो कि ऑक्सीडाइजिंग है नेचर के अंदर। We have another one which is called potassium dichromate, Cr2O7, ठीक है? और इसका जो आयन है डाइक्रोमेट आयन वो ये है। और you can clearly see कि if it is 4 2s are this is -8, तो इसका मतलब है कि ये +7 होगा, तभी इस पे -1 चार्ज आ सकता है। यहाँ पे इसका क्या 7 2s are -14 और -14 का मतलब +12 और ये चूंकि 2 है नो तो ये +7। तो आप देखें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में की जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है इज हाईली पॉजिटिव, ठीक है? तो ऐसी स्पीशीज जो हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर रखें वो ऑक्सीडाइजिंग होती। इसका उलट क्या होगा? अगर कोई ऐसी स्पीशी है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर आर नेगेटिव, हाई बट नेगेटिवली हाई, तो वो फिर रिड्यूसिंग होते हैं नेचर के अंदर, ठीक है? दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर। अच्छा, सो इसको हम ऐसा लिखने के बजाय, कंफ्यूजन खत्म करने के बजाय हम इसे लिखते हैं V227 ताकि पता चल सके आपको। अच्छा, ये जो Cr2O7 है विद ए 2- चार्ज, इट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या होते हैं? हमेशा रिएक्शन में रिड्यूस होते हैं। और रिमेंबर कि डाइक्रोमेट हमेशा क्रोमियम 3 में रिड्यूस होता है। बस आपने ये याद रखना है कि डाइक्रोमेट रिड्यूस होता है तो क्या बनता है? क्रोमियम 3। और हम खुद देख सकते हैं कि डाइक्रोमेट में क्रोमियम वाज इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, नाउ इट इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। रिडक्शन इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन +6। अच्छा, हाँ, यस, राइट, बिल्कुल ठीक है। 7 2s are -14 और -14 और +12 इज -2 और +12 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये 6 है, सॉरी। सो 6 से 3 में जाना इज रिडक्शन। अब ये जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है इसको हम रटा नहीं लगाएंगे बल्कि खुद लिखेंगे। खुद कैसे करेंगे? बैलेंस क्रोमियम, नन हाइड्रोजन, नन ऑक्सीजन एटम्स। उसके बाद बैलेंस ऑक्सीजन, देयर आर 7 ऑक्सीजन एटम्स, 7 वाटर। नाउ वी हैव 14 प्रोटॉन्स। इट्स ए रिडक्शन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन इस साइड पे ऐड करने। कैसे? देयर आर +3 2s, +6 चार्ज है इस साइड पे, 14 प्रोटॉन्स और यहां पे +12 चार्ज है। Am I right? 14 और -2 +12। तो हमें +12 से प्लस कैसे कर सकते हैं? +6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें। तो अब इधर भी 6 पॉजिटिव चार्ज, इधर भी 6 पॉजिटिव चार्ज। तो ये इक्वेशन जबरदस्त, आराम से हमने
एक जो रिडक्शन हाफ इक्वेशन है वो लिख ली है। ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन क्या होगी? ये वाली, ठीक है, कोई इसमें जरूरत करने की जरूरत नहीं है। इस बैलेंस्ड इक्वेशन को हम क्यों एम्फसाइज कर रहे हैं, बनाना क्यों सीख रहे हैं? इसलिए कि दिस विल गिव अस कि देयर इज ऑलवेज 1:6 मोल रेशियो, यानी 1 मोल ऑफ dichromate requires 6 moles of electron to get converted to chromium 3, ठीक है। रिमेंबर कि जो ऑक्सीजन का रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन गेट्स कन्वर्टेड टू वाटर, यहां पे ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का रिएक्शन है। देखिए कि हमें जहन में रखने की जरूरत है कि अगर हम ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज ना करते तो क्या होता, उसकी फेट क्या होती। जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसने उसको ऑक्सीडाइज कर देना था, राइट, वाया दिस रिएक्शन। ओके, तो इस रिएक्शन में एक ऑक्सीजन मोल को 4 मोल्स इलेक्ट्रॉन चाहिए इन ऑर्डर टू कैरी दिस रिएक्शन, राइट। ये हमें साथ में पैरेलल में देखना है। ओके, अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कभी पोटासियम डाइक्रोमेट की टाइट्रेशंस की हैं कभी पूरे कैरियर के अंदर? कभी आई थिंक ए लेवल्स में हैं रिडॉक्स टाइट्रेशंस एक्सक्लूसिव, और आपको बैक टाइट्रेशन का कंसेप्ट भी आता होगा। उसमें करते ये हैं कि पोटासियम डाइक्रोमेट का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, यानी हमें उसकी कंसंट्रेशन का पता होता है। वी ऐड एक्सेस ऑफ इट इन वाटर, एक्सेस में डाल देते हैं। अब जाहिर बात है उसमें से कुछ अमाउंट ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करेगा, कुछ बच जाएगा। जो बचेगा उसे हम बैक टाइट्रेट करते हैं विद आयरन 2 सॉल्यूशन, ठीक है, स्टैंडर्ड आयरन 2 सॉल्यूशन। उससे हमें पता चल जाता है कि पोटासियम डाइक्रोमेट कितना यूज हुआ है, राइट। और जितना यूज हुआ इसका मतलब वो सारे का सारा किस में यूज हुआ, ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने में। तो इस तरह से ये सारे का सारा काम किया जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, हमें ये कहते हैं कि वी हैड ए सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम डाइक्रोमेट दैट वाज 0.002 मोलर, और इसको यूज करते हुए हमने वाटर का एक सैंपल जो कि एक स्ट्रीम से लिया हुआ था, उसको हमने ऑक्सीडाइज किया, उसका ऑर्गेनिक मैटर, एंड ओनली 4 मिलीलीटर्स ऑफ दिस सॉल्यूशन वर यूज्ड। यानी जो ही 4 मिलीलीटर इसके यूज हुए, एंड पॉइंट आ गया हमारा। इसका मतलब है कि ऑल द मैटर, ऑल द ऑर्गेनिक मैटर हैज ऑलरेडी बीन ऑक्सीडाइज्ड बाय द पोटासियम डाइक्रोमेट। We need to find how much moles of potassium dichromate were basically utilized in oxidizing the organic matter. Can we do that? कैसे करते हैं? आप देखें कि फ्रेशमैन लेवल से ऊपर की केमिस्ट्री अभी तक हमने कहीं पे भी यूज नहीं किया, बल्कि ए लेवल केमिस्ट्री से ऊपर नहीं जाते हम कभी भी। हाँ, एग्जैक्टली। रिमेंबर कि ऑलवेज वॉल्यूम टाइम्स मोलैरिटी इज कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर। So it's always better to convert milliliters to liters, ठीक है, क्योंकि मोल्स जो है ना, मोलैरिटी इज बेसिकली मोल्स पर लीटर, और अगर ये मिलीलीटर में है तो फिर हमें जाहिर बात है इसे भी लीटर में कन्वर्ट करना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, लीटर्स में कितना है, 0.004 लीटर्स टाइम्स 0.002 मोल्स पर लीटर। तो ये जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 8.0 into 10⁻⁻⁶ moles. So this much moles of potassium dichromate has been used. अच्छा, अगर हम इसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना, अगर ऑक्सीजन, डिसॉल्व ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करता ऑर्गेनिक मैटर को, तो वो कितनी ऑक्सीजन यूज होती? हम यहां पे एक काम कर सकते हैं, वो ये कि दिस इज द मोल्स ऑफ पोटासियम डाइक्रोमेट जो कि यूज हो रहे हैं
यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ। You know कि according to the balanced chemical equation, 1 mole of potassium dichromate requires 6 moles of electron. So अगर हम इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास मोल्स इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे जो कि इस वक्त यूज हुए हैं, और ये जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर आता है 4.8 इंटू 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए हैं इस प्रोसेस के अंदर। अच्छा, अब आप देखें कि यहां पे अगर हम देखें तो मोल्स इलेक्ट्रॉन से हम मोल्स ऑक्सीजन फाइंड कर सकते हैं। मसलन आप यहां पे देखें कि 1 मोल इज 4 मोल। तो अगर हम ये अज्यूम करें कि इतने ही अलग, जाहिर बात है कि जो रिडक्शन है, वेदर वो पोटासियम डाइक्रोमेट करे, सॉरी ऑक्सीडेशन जो है वो पोटासियम डाइक्रोमेट करे या कोई और चीज करे, इलेक्ट्रॉन तो एक जैसा यूज होने हैं ना, राइट? क्या ख्याल है? मसलन आयरन को +2 से +3 में जाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए हर मोल को, ये कभी चेंज तो नहीं होगा। अब मैं उसे पोटासियम डाइक्रोमेट से ऑक्सीडाइज करूं या पोटासियम परमैंगनेट से या हाइड्रोजन परऑक्साइड से, इलेक्ट्रॉन का 1 ही मोल चाहिए उसे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो हम यही कंसेप्ट उल्टा करके बीओडी फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं इसे, कि वी नो कि व्हेन ऑर्गेनिक मैटर दैट वाज प्रेजेंट इन वाटर दैट रिक्वायर्ड this much moles of electron to get oxidized. तो अगर हम ऑक्सीजन टर्म्स में देखें तो हमने कहा कि if there are 4 moles of electron, they require 1 oxygen. If we have 1 mole of oxygen, that will require 1/4, and we have this much amount of moles. तो basically अगर आप इसे 4 से डिवाइड कर दें तो that will be the moles of oxygen, जो कि यूटिलाइज होंगे कब? जब ऑक्सीजन इस ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करेगी, और ये आता है 1.2 इंटू 10⁻⁻5। यानी मैं कह सकता हूं कि मोल्स ऑक्सीजन अगर मैं फाइंड करूं तो ये 1.2 इंटू 10⁻⁻5 आ गई, और इसको मैं 16 से मल्टीप्लाई करके कि इसका मैस फाइंड कर सकता हूं। मैं रिपीट कर देता हूं एक दफा कि वी टॉक्ड अबाउट दिस कंसेप्ट केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में हम ये देखते हैं कि हाउ मच वी बेसिकली ऑक्सीडाइज बैक्टीरिया और द ऑर्गेनिक मैटर विद द हेल्प ऑफ ए केमिकल रिएजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसे हम पोटासियम डाइक्रोमेट कहते हैं। उसकी अपनी रिडक्शन होती है, कैसे होती है वो हमने खुद इक्वेशन बना ली। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें ये पता चला कि भाई अच्छा, इसका एक ऐसा करते हैं, मेरे पास एक क्वेश्चन है, व्हाई नॉट कि वी डू दैट, बजाय ये कि मैं ये चीज़ बताता रहूं। ओके, क्वेश्चन इज कि 25 मिलीलीटर सैंपल ऑफ रिवर वाटर, 25 मिलीलीटर वाटर है, इधर लिख लेते हैं। ओके, हमारे पास रिवर वाटर है, हाउ मच? 25 ml, और हमने इसको लिया, टाइट्रेट किया पोटासियम डाइक्रोमेट के साथ, और K2Cr2O7 का जो हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं दैट हैज ए मोलैरिटी ऑफ 0.001 मोलर, एंड हाउ मच वाज इट यूज्ड, यानी वॉल्यूम कितना यूज हुआ है K2Cr2O7 का 8.3 मिलीलीटर्स। COD कितनी है इसकी? बेसिकली ये आपने फाइंड करना है। आपने करना क्या है? एग्जैक्टली जो हमने वो काम किया है।
वहां पे हमारे पास कोई वॉल्यूम नहीं दिया हुआ था और मोल्स तक रहे। मोल्स को मोलर मैस से आप मल्टीप्लाई करेंगे, मैस बन जाएगा। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, राइट। कम ऑन, ये अभी करना बड़ा जरूरी है ताकि सीओडी का जो कंसेप्ट हमने देखा है, इफ यू हैव क्वेश्चंस ना ड्यूरिंग दी इसको सॉल्व करते हुए, डू आस्क मी। मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको नजर आती रहे। ये Can I borrow a pen, please? Thank you. Done? Wow, क्या आंसर आया आपका? एक पॉइंट 10 is divided by 6 moles of K2Cl2O3 ठीक है, इसको multiply कर 6 से 4 पे डिवाइड कर दिया। ऑक्सीजन के मोल्स मोल्स आए, लेकिन आपने मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर फाइंड करना है। ये मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गए ना, आप इसको मैस में कन्वर्ट कर दें। कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग विद द एमआर एंड देन यू हैव द वॉल्यूम 25 मिलीलीटर। और मिलीग्राम पर लीटर में जब आपके पास चीज आ जाएगी तो दैट इज योर आंसर, पीपीएम। बॉडी मास में ऑक्सीजन को डबल करना है हाँ, 16 टाइम्स 2 नहीं 32, हाँ 32 grams per mole. So, any problem so far? Anyone? Remember, I did only the moles of oxygen. You need to give me the answer in milligrams of oxygen, not moles of oxygen, and per liter. क्योंकि यहाँ पे हमें वॉल्यूम नहीं दिया हुआ था कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सैंपल वी आर यूजिंग, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। वन एडिशनल स्टेप, दैट दिस इज इट। सो आंसर पर मोल्स पर आया इसको लीटर में चेंज करने के लिए क्या करना है अभी आपके पास जो आंसर आएगा ना, उसमें ये मोल्स है ना, तो मोल्स मोल्स कैंसिल हो गए, तो आपके पास ग्राम में जवाब आएगा। ठीक है, आंसर मिलीग्राम में चेंज करना है मिलीग्राम में चेंज कर दिया। ठीक है, तो पर मोल ना करें ना, मोल इज कैंसल्ड आउट। दिस इज मिलीग्राम्स, डिवाइड करें 25 ml को लीटर्स में कन्वर्ट करें, 0.025 लीटर्स। यूनिट लिखें साथ ताकि आपको लीटर, और ये कौन सा लीटर है? मिलीग्राम। हाँ, अब आपके पास मिलीग्राम पर लीटर जो कि पीपीएम है वो उसके आंसर आ जाएगा। सो क्या आंसर आया आपके पास? 15.9 है, यानी 16 पीपीएम, राइट, और मिलीग्राम पर लीटर। आपका भी इतना ही आ रहा है, 15.9 15.9। आपका क्या आंसर आया? I have into 10 raised to power minus 16 as well
नहीं, ये कहीं से आप रीचेक करें। ग्राम को मिलीग्राम में चेंज करने के लिए इसे 10⁻³ से मल्टीप्लाई हाँ हाँ। तो ये -6 पहले से था तो ये -9 हो जाएगा और -9 इसके साथ जब डिवाइड करेंगे तो ये -16 हो जाएगा अच्छा मेरा -90 आप रीचेक करें इसे फिर। डन। 15.9 मिलीग्राम पर लीटर। आपका भी यही आ रहा है? सर मुझे 7.97 आ रहा है। हाउ? सर ऑक्सीजन 16 ऑक्सीजन 16 लिया है, 32 लिया है। फिर 16 में होगा ना 8 + 8 O2 है तो 16 ऑक्सीजन का 16 होता है O2 ओके ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, मॉलिक्यूलर वेट। सो हाँ, ये आपने जो किया ना 7.9 7.9, आई थिंक यू हैव यूज्ड 8 एज दी 16 लिया। नो 32 करें फिर ठीक है। 32 होगा मॉलिक्यूलर वेट। यू कैन मॉलिक्यूलर वेट या तो आपको दिए होंगे या यू कैन यूज दी ऑनलाइन सोर्सेज टू फाइंड देम। ठीक है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं। MR जिसे हम कहते हैं। सो दिस इज हाउ वी फाइंड द COD। अच्छा, लास्ट थिंग बिफोर वी साइन ऑफ के COD की वैल्यू हमेशा BOD से ज्यादा होती है। रीजन क्या हो सकती है? देखिए, बाज़ औक़ात ऑर्गेनिक मैटर इतना कम होता है कि इट इज नॉट गोइंग टू यूज मच ऑफ द ऑक्सीजन, लेकिन हम जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें उसने तो नहीं माफ करना ना, उसने सारे ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज कर देना है। तो sometimes oxygen levels are very low, they are not oxidizing anything, so BOD से COD की वैल्यू हमेशा हमारे पास ज़्यादा। So this is it for the day। रिमेंबर कि हम वाटर के जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, उसमें रिडॉक्स रिएक्शंस के अलावा इसकी कुछ एसिड बेस केमिस्ट्री है और डिसोल्यूशन है। यही 3 चीज़ें हैं जिनको हम देख के वाटर पॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये है कि आप, चूंकि इट्स एन ऑन कैंपस क्लास, तो अटेंडेंस इज रियली लो। आज फिर भी बेहतर है। ठीक है, तो अगर हम ऑन कैंपस आ रहे हैं तो हमें ऑन कैंपस होना चाहिए फिर। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप जो है ना आते रहें टाइम पे। ठीक है, बाकी असाइनमेंट एक अपलोड हो चुकी है, आपको पता हो चुका होगा। इट्स ए प्रॉब्लम सेट अगेन। उसका एक क्वेश्चन जो लाहौर एयर पोल्यूशन के बारे में है, अगर आपके क्वेश्चंस हों, अभी चूंकि जो ऑफिस आवर्स हैं वो नहीं आ रहे आप लोग, तो हम ऐसा करते हैं कि ऑफिस आवर्स ऑन ईमेल, आप ईमेल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आपको जब अवेलेबिलिटी है अपनी आसानी से, तो उससे फिर फिक्स कर लें। ठीक है, बजाय ये कि एक ही फिक्स टाइम मेरी तरफ से हो। ओके, हैव ए गुड डे।